بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الرابع چوتھا سبق النکرۃ والمعرفۃ نکرہ اور معرفہ اردو زبان کا ایک جملہ لیجیے۔ حامد نے ایک کتاب پڑھی، اس جملے میں لفظ حامد متعین اور مخصوص شخص کے لیے استعمال ہوا ہے۔ دوسرا لفظ ایک کتاب عام ہے، اس سے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حامد نے کون سی کتاب پڑھی۔ معرفہ اور نکرہ میں یہی فرق ہے۔ ایک ہی جیسی کئی چیزوں کے مشترک نام کو اس میں نکرہ کہتے ہیں، جیسے جنینۃ کوئی پارک، قلم ایک قلم، مرسم کوئی پنسل، سبورۃ ایک بلیک بورڈ۔ ان الفاظ سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ بولنے والا کوئی خاص پارک، کوئی خاص قلم، کوئی خاص پنسل، کوئی خاص بلیک بورڈ مراد لے رہا ہے۔ لیکن آج کے سبق میں ہم لوگ کیا پڑھیں گے؟ نکرہ اور معرفہ۔ آج کے سبق میں ہم لوگ کیا پڑھیں گے؟ نکرہ اور معرفہ۔ نکرہ کس کو کہتے ہیں؟ نکرہ کہتے ہیں بے متعین چیز کو، جو متعین نہ ہو۔ مثال سے سمجھا رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں، حامد نے ایک کتاب پڑھی۔ میں یہاں پر لکھتا ہوں، دیکھیے حامد نے ایک کتاب پڑھی۔ حامد یہ تو متعین ہے کہ ایک بندے کا نام ہے۔ ایک کتاب پڑھی، ایک کتاب کون سی کتاب؟ عربی والی کتاب، فارسی کی کتاب، کون سی کتاب پڑھی یہ معلوم نہیں۔ تو یہ ایک کتاب یہ متعین ہے کیا؟ ایک کتاب متعین ہے؟ بولیے، ایک کتاب یہ جو ایک کتاب ہے یہ متعین ہے؟ نہیں ہے۔ تو یہ غیر متعین ہو، جو متعین ہے تو غیر متعین۔ تو نکرہ کہتے ہیں اسی کو، غیر متعین کو۔ یہاں پر میں عنوان کر دیتا ہوں، معرفہ اور نکرہ۔ نکرہ ایک کتاب یہ معلوم ہے کون سی کتاب ہے؟ عربی کی کتاب، ہندی کی کتاب، انگریزی کی کتاب، فارسی کی کتاب، کون سی کتاب پڑھی ہے معلوم نہیں ہے۔ تو یہ غیر متعین، اسی کو کیا کہیں گے؟ نکرہ۔ جو متعین نہ ہو اس کو کیا بولیں گے؟ نکرہ۔ اور جو متعین ہو اس کو کیا بولیں گے؟ معرفہ۔ جیسے میں بولا اشفاق، تو اشفاق کو یہی لڑکا ہے نا، ایسا تو نہیں کہ اشفاق کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اشفاق کو یہ لڑکا جو متعین ہے۔ اور اگر میں بولوں طالب علم، تو طالب علم یہ بھی سب طالب علم، کون طالب علم ہے؟ تو یہاں طالب علم متعین ہے؟ طالب علم متعین ہے؟ بولو نہیں ہے، تو وہ کیا ہو گیا؟ نکرہ۔ اور اشفاق یہ متعین ہو گیا نا، یہ کیا ہوا؟ معرفہ۔ تو نکرہ معرفہ میں متعین اور غیر متعین۔ جیسے میں بولوں گا کہ یہ لڑکا متعین ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ معرفہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اگر میں بولوں صرف لڑکا، کون لڑکا بھائی؟ مدرسے کا لڑکا، اسکول کا لڑکا، باہر جانے والا لڑکا، کون لڑکا؟ متعین نہیں ہے نا، وہ نکرہ ہو گیا۔ اور اگر متعین ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اگر میں بولوں کہ یہ کتاب دکھا رہا ہوں، یہ کتاب، یہ کیا ہوا؟ متعین ہوا نا، معرفہ۔ اور اگر میں بولوں کہ کتاب، تو بھائی کون سی کتاب؟ تو متعین نہیں ہے نا وہاں پر، نکرہ۔ اگر میں بولوں گا کہ کتاب لاؤ، متعین ہے کیا؟ آپ پوچھیں گا کہ کون سی کتاب لائیں گے مفتی صاحب؟ تو جو متعین نہ ہو اس کو کیا بولیں گے؟ نکرہ۔ اور جو متعین ہو اس کو کیا بولیں گے؟ معرفہ۔ آج کے سبق میں یہی پڑھنے والے ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ دیکھیں اردو زبان کا ایک جملہ لیجیے۔ حامد نے ایک کتاب پڑھی، اس جملے میں لفظ حامد متعین اور مخصوص شخص کے لیے استعمال ہوا۔ دوسرا لفظ ایک کتاب عام ہے، اس سے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حامد نے کون سی کتاب پڑھی۔ معرفہ نکرہ میں یہی فرق ہے۔ معرفہ نکرہ میں کیا فرق ہے؟ یہ جو معرفہ متعین اور نکرہ غیر متعین، یہی فرق ہے۔ ایک ہی جیسی کئی چیزوں کے مشترک نام کو اس میں نکرہ کہتے ہیں۔ سوال آئے گا کہ اس میں نکرہ کی تعریف کیا ہے؟ اس میں نکرہ کی تعریف کیا؟ جواب کیا بنے گا؟ ایک ہی جیسی کئی چیزوں کے مشترک نام کو اس میں نکرہ کہتے ہیں۔ کتاب میں مثال دے رہے ہیں، جیسے جنینۃ کوئی پارک، تو پارک کون سا پارک؟ کٹھیار کا پارک، بنگلور کا پارک، بمبئی کا کون سا پارک؟ متعین ہے کہ خالی پارک بولنے سے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کون سا پارک؟ اور اگر میں بولوں
कटियार का पार्क जो मदरसे के सामने है, अब ये मुतय्यन हो गया, हुआ ना। तो एक ही जैसी कई चीजों के मुश्तरक नाम को क्या बोलेंगे, नकीरा। और अगर मुतय्यन हो जाए उसको क्या बोलेंगे, मारिफा। देखिए एक ही जैसी कई चीजों के मुश्तरक नाम को इसमें नकीरा कहते हैं। जैसे जुनैनतुन कोई पार्क, कलमुन एक कलम, मिरसबुन कोई पेंसिल, सफूरतुन एक ब्लैक बोर्ड। इन अल्फाज से ये मालूम नहीं होता कि बोलने वाला कोई खास पार्क, कोई खास कलम, कोई खास पेंसिल, कोई खास ब्लैक बोर्ड मुराद दे रहा है। मैंने कहा पार्क, आपको समझ आ रहा कौन सा पार्क? मैंने बोला ब्लैक बोर्ड, कौन सा ब्लैक बोर्ड? मैंने कहा मदरसा, कौन सा मदरसा? पूछेगा ना, कटिहार का मदरसा, बारसई का मदरसा, दिल्ली का मदरसा, कौन सा मदरसा? और अगर मैं ये बोल दूं कटिहार का दारुल उलूम लतीफी मदरसा, अब बिल्कुल कंफर्म हो गया कि ये वाला मदरसा है। यही फर्क है मारिफा और नकीरा। तो मारिफा से मुतय्यन और मखसूस चीज समझ में आती है, इसीलिए मर्दों, औरतों और शहरों के नाम मारिफा होते हैं। मर्दों के नाम ये क्या है, मारिफा है मर्दों के नाम। जैसे ये अशफाक मुतय्यन है, एक लड़के का नाम है, ये क्या हुआ, मारिफा की नकीरा हुआ, मारिफा। मतलब आपका नाम क्या, नसीम, मतलब नसीम मुतय्यन है कि ये वाला लड़का मुराद है, तो मारिफा हुआ कि नकीरा हुआ, मारिफा। मुतय्यन है ना कि ये लड़का जो बैठा नसीम। अच्छा, इसी तरह से शहरों के नाम, जैसे कटिहार एक शहर का नाम है ना। अगर मैं बोलूंगा कटिहार तो क्या आप सोचेंगे कि कटिहार कौन सा कटिहार, ऐसा सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। क्यों सोचेंगे? कटिहार से एक ही कटिहार है। कितना कटिहार है, कितना कटिहार है हमारे बिहार में? 5 कटिहार है, एक ही कटिहार है। जैसे शहरों का नाम क्या होता है, मारिफा। अगर मैं बोलूं कि बिहार, तो मालूम नहीं होगा कि बिहार से आप लोग पूछेगा कि कौन सा बिहार, पूछेगा नहीं भाई, बिहार तो एक ही है। तो मर्दों के नाम, शहरों के नाम और औरतों के नाम, ये सब क्या होते हैं, मारिफा होते हैं और मुतय्यन होते हैं। देखो मारिफा से मुतय्यन और मखसूस चीज समझ में आती है, इसीलिए मर्दों और औरतों, शहरों के नाम मारिफा होते हैं। उर्दू में नकीरा की पहचान ये है कि उसका तर्जुमा कोई, कोई एक या कुछ जैसे अल्फाज से किया जाता है। अब एक सवाल ये कि मुफ्ती साहब आपने तो ये समझा दिया कि मारिफा किसको कहते हैं, और आपने ये भी समझा दिया कि नकीरा किसको कहते हैं। अब ये समझाइए कि मारिफा की पहचान क्या है और नकीरा की पहचान क्या है। अब यहाँ पर मिसाल देखिए, मिसाल मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, कलम, कोई एक कलम, समझे? कलम कोई एक कलम। एक और मिसाल दे देता हूं, और कौन सा, और कौन सा पढ़े आप लोग? फारस बड़ा पढ़े हैं, फारस कोई, ठीक है। अब यहाँ पर उर्दू में नकीरा की पहचान ये है, उसका तर्जमा कोई, कोई एक या कुछ जैसे अल्फाज के साथ किया जाता है। जैसे किताब, कोई एक किताब, उसको भी लिख देते हैं। रजुल कोई एक मर्द, माउन कुछ पानी, अब देखिए यहाँ पर पढ़ो तो नकीरा की पहचान क्या, पढ़ो तो बिस्मिल्लाह हो गया, पढ़ो ना पहली बार। उर्दू में नकीरा की पहचान ये है कि उसका तर्जुमा कोई, कोई एक या कुछ जैसे अल्फाज के साथ किया। रुक जाओ, क्या बताया? उर्दू में नकीरा की पहचान क्या है, उसके तर्जुमे में क्या रहेगा, कोई, कोई एक या कुछ लिखा हुआ रहेगा। समझे? उर्दू में नकीरा की पहचान क्या है, उसके तर्जुमे में क्या रहेगा, कोई, कोई एक या कुछ लिखा हुआ रहेगा, तो वो लफ्ज क्या होगा, नकीरा होगा। अब देखिए कलम, कलम ये लफ्ज क्या है,
नाकिरा नहीं, नकीरा। कि कैसे पता चला? तो भाई तर्जमा देखो, कोई एक कलम है ना, तर्जमा में कोई एक कलम। और अभी क्या बताया? नकीरा की पहचान में क्या बताया? अभी क्या बताया? बोलिए भाई, कोई एक रहेगा उसके तर्जमे में, तो है ना यहाँ पर तर्जमे में कोई एक है कि नहीं? फरसुन कोई घोड़ा, यह लफ्ज़ फरसुन क्या मारिफा की नकीरा है? बोलिए मारिफा की नकीरा, बोलिए नकीरा है। क्यों? तर्जमा में देखिए कोई घोड़ा है ना, कोई किताबुन कोई एक किताब, ये लफ्ज़ मारिफा की नकीरा, किताब नकीरा क्या है? नकीरा। क्यों नकीरा है? इसलिए कि तर्जमा में क्या है? कोई एक आया है ना। अच्छा, रजुलुन ये लफ्ज़ क्या है? मारिफा की नकीरा, रजुलुन नकीरा। क्यों? तर्जमा में कोई का आया ना लफ्ज़। माउन ये लफ्ज़ माउन नकीरा है या मारिफा है? नकीरा है। जी बात है, यहाँ कुछ नहीं, अभी बताया ना कि नकीरा की पहचान ये उसमें कोई एक या कुछ रहेगा, या कुछ नहीं है, कुछ पानी यहाँ लिखा हुआ नहीं है। देखो ना यहाँ पर क्या है? कोई एक या कुछ जैसे अल्फाज होंगे है। तो कलमुन फरसुन किताबुन रजुलुन माउन ये सब क्या है? नकीरा है। तो ये आपका नाम क्या हुआ? हाँ, राज़ी। राज़ी बताओ, फरसुन मारिफा है कि नकीरा है? नकीरा। क्या अलामत पाई जा रही? कौन सी अलामत है नकीरा होने की? कोई लिखा हुआ है। कलमुन अशराफ मारिफा की नकीरा, फटाफट बोल। नकीरा। कौन अलामत पाई जा रही है यहाँ पर? कोई एक लिखा हुआ है ना। माउन ये लफ्ज़ मारिफा की नकीरा, बोलिए नकीरा। कौन सा अलामत पाई जा रही है? जी वाला कहाँ? कोई यहाँ है, कोई है भाई। माउन का तर्जुमा कुछ पानी लिखा हुआ, कहाँ कोई है लिखा हुआ? अजीब इनकी दुनिया है। रजुलुन तुम बता, रजुलुन मारिफा की नकीरा है? नकीरा है। क्यों? इसलिए कि कोई लिखा हुआ है ना, कोई। किताब मारिफा की नकीरा है, नकीरा। क्या अलामत पाई जा रही? कोई। तो अरबी में किसी भी लफ्ज़ को अगर पहचानना हो मारिफा है या नकीरा है, तो उसका तर्जमा देखो, तर्जमा क्या है? अगर तर्जमे में कोई एक कोई कुछ, अगर तर्जमे में ये अल्फाज आ रहे हैं तो समझ जाओगे वो लफ्ज़ क्या होगा? मारिफा होगा, नकीरा होगा। समझे? आज तुम लोग हिस्स में जाओगे तो बच्चों को क्या बताओगे? आज हम लोग कौन सा सबक पढ़े? मारिफा और नकीरा पढ़े। मारिफा बोलते जो मुतय्यन हो, और नकीरा किसको बोलते? जो मुतय्यन ना हो। समझ आया ना? और नकीरा की पहचान क्या है? तर्जमा में कोई एक कोई कुछ ये अल्फाज रहेंगे। समझ में आया? अब पूरी अरबी में, पूरी किताब में कहीं पर भी, चाहे कुरान की अरबी हो, हदीस की अरबी हो, इस दुनिया की अरबी हो, मैदान महशर की अरबी हो, जन्नत में भी अरबी में बोलोगे ना। अरे जन्नत में जाओगे तो कौन सा भाषा बोलोगे? अरबी ज़बान बात करोगे। जन्नत में कौन सी ज़बान में बात करोगे? अरबी ज़बान में। वहां पर अगर तुम ये कहोगे, अरबी में कुछ भी बोलोगे, जैसे तुफ़ाहुन, उसके बारे में कोई सेब, तो जन्नत में भी वो लफ्ज़ क्या होगा? तुफ़ाहुन। क्या होगा? मारिफा होगा कि नकीरा होगा? नकीरा होगा। अगर यहाँ सीख गए तो वहां पर भी यही बोला जाएगा। अगर घोड़ा, जन्नत में घोड़ा होगा कि नहीं होगा? घोड़े में बैठ करके उड़ता हुआ जाएगा बंदा, तो घोड़ा। अब बोलोगे कि फरसुन, हादा फरसुन, ये घोड़ा है, तो असल में फरसुन ये एक घोड़ा है, एक आया था, तो फरसुन क्या हुआ? चलो तुम लोग समझ गए अच्छी तरह से नकीरा की अलामत। देखिए उर्दू में नकीरा की पहचान ये है कि उसका तर्जुमा कोई एक या कुछ जैसे अल्फाज के साथ किया जाता है। जैसे किताबुन कोई एक किताब, रजुलुन कोई मर्द, माउन कुछ पानी। अरबी में ये तो उर्दू में नकीरा की पहचान हुई। अरबी में नकीरा की पहचान क्या? अगर किसी को कलमों का तर्जुमा मालूम ना हो तो वो कैसे पहचानेगा कि ये अरबी में नकीरा है? अरबी में नकीरा की पहचान मिसालों में तलाश कीजिए, आप देखेंगे जिस लफ्ज़ का तर्जुमा कोई एक या कुछ जैसे हुआ उसके आखिर में तनवीन है। तो अरबी में नकीरा की पहचान क्या है? आखिरी लफ्ज़ में क्या है? तनवीन है। तो आखिरी जिस लफ्ज़ पर तनवीन होगा वो लफ्ज़ अरबी में क्या होगा? नकीरा होगा। कलमुन ये लफ्ज़ मारिफा की नकीरा है, जल्दी बोलो। कौन सा लफ्ज़ पाई जा रही? तनवीन है। फरसुन ये लफ्ज़ मारिफा की नकीरा है, नकीरा। कौन सा लफ्ज़ पाई जा रही? तनवीन है। किताब मारिफा की नकीरा है, कौन सा लफ्ज़ पाई जा रही? तनवीन। रजुलुन लुन तनवीन मारिफा की नकीरा है,
अभी 10 दिन और आओगे ना तो अरबी अव्वल वालों से तुम लोग अरबी में बात करोगे इंशाल्लाह। तो समझ आ रहा है ना? अरबी में अब अगर तुम लोग जो कुरान पढ़ोगे जैसे ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, असल में क्या है? हुदन है, हाफिज को दाया दो जबर तन, तन तनवीन है ना, वो क्या है? नकीरा की मारिफा है, नकीरा है। अच्छा तुम्हारा सबक कहाँ है? कुछ ना पढ़ो, नूरानी कायदा दरसा वदा हुआ, कहाँ सबक है? तख्ती नंबर 9, तख्ती नंबर तैरन अबाबिला है, तख्ती नंबर 9 में जी है। अरे कल पढ़ो ले, तख्ती नंबर 9 में सबसे पहले क्या है? तैरन अबाबिला है कि नहीं है? तैरन, तैरन ये लफ्ज़ क्या मारिफा की नकीरा है? नकीरा क्यों? तनवीन है, दो ज़बर की तनवीन है नहीं? जी है। अच्छा नारुन हामियतुन है ना, नारुन हामियतुन, नारुन मारिफा की नकीरा है, क्यों? इसलिए कि तनवीन है, नारुन रा दो पे छोड़ है ना, हामियतुन, हामियतुन मारिफा की नकीरा है, नकीरा क्यों? तनवीन है। तो माशाल्लाह तुम लोग अब नूरानी कायदा में अरबी सीख रहे हो, अरे नूरानी कायदा में अरबी सीखो कि नहीं सीखोगे? मालूम है ना नकीरा की पहचान? इसका मतलब ये हुआ कि जिस लफ्ज के ऊपर तनवीन हो वो नकीरा, तो जिस लफ्ज के ऊपर तनवीन ना हो वो क्या बनेगा? मारिफा। समझे कि नहीं समझे? देखो किताब पढ़ो। उर्दू में नकीरा की पहचान ये है कि उसका तर्जुमा कोई एक या कुछ जैसे अल्फाज के साथ किया जाता है, जैसे किताब कोई एक, किताब रजुल कोई मर्द, माउन कुछ पानी। अरबी में नकीरा की पहचान मिसालों में तलाश कीजिए, आप देखेंगे कि जिस लफ्ज का तर्जुमा कोई एक या कुछ जैसे अल्फाज के जरिए हुआ उसके आखिरी हर्फ पर तनवीन है। उर्दू में मारिफा के तर्जुमा में कोई एक या कुछ अल्फाज नहीं होते, मारिफा की पहचान है। जैसे अब देखिए उर्दू में मारिफा के तर्जुमे में कोई एक या कुछ के अल्फाज नहीं होते। उर्दू में मारिफा की नकीरा तो पहचान गया है ना, उर्दू में नकीरा की पहचान आप जान गए और अरबी में नकीरा की पहचान भी आप जान गए। मारिफा तो कह रहे हैं कि मारिफा की पहचान ये है उर्दू में कोई एक कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पर है अल किताबों का तर्जुमा किताब, कोई एक किताब है नहीं है। अल कलमों का तर्जुमा कलम, कोई एक कलम है नहीं है। अल कुरासतु का तर्जुमा कापी, कोई एक कापी है नहीं है। तो पता ये चला कि ये सारे अल्फाज उर्दू में कोई एक कुछ भी नहीं आ रहा, लिहाजा मारिफा है। समझा? जिसके तर्जुमे में कोई एक कुछ ना हो वो लफ्ज क्या होगा? मारिफा हो जाएगा। और जिसके तर्जुमे में कोई एक कुछ जैसे अल्फाज हो वो लफ्ज क्या होगा? नकीरा। ये तो उर्दू में हुआ। अरबी में पहचान ये है कि जिस लफ्ज के आखिर में शुरू में अलिफ लाम हो, जिस लफ्ज के शुरू में अलिफ लाम हो और आखिर में तनवीन ना हो वो लफ्ज क्या होगा? जिस लफ्ज के शुरू में अलिफ लाम हो, है ना, ये अल किताबु अलिफ लाम, अल कलमु अलिफ लाम, अल कुरासतु अलिफ लाम है। तो जिस लफ्ज के शुरू में अलिफ लाम हो और आखिर में तनवीन ना हो वो लफ्ज भी क्या होगा? मारिफा। तो नकीरा में क्या होता है? तनवीन होता है आखिर में, और मारिफा में क्या होता है? शुरू में अलिफ लाम होता है और आखिर में तनवीन नहीं होती। मिसाल देखिए, अल किताब ये लफ्ज मारिफा है ना, इसलिए अलिफ लाम शुरू में, अल कलम मारिफा इसलिए अलिफ लाम शुरू में, अल कुरासतु मारिफा इसलिए अलिफ लाम शुरू में है। देखिए उर्दू में मारिफा के तर्जुमे में कोई एक या कुछ के अल्फाज नहीं होते। अरबी में मारिफा की पहचान ये है उस पर अलिफ लाम होता है ना, अलिफ लाम है उस पर। अच्छा इसी तरह मर्दों औरतों के नाम भी मारिफा होते हैं, उन पर तनवीन आती है लेकिन अलिफ लाम दाखिल नहीं होता। बाज़ नामों पर अलिफ लाम भी दाखिल नहीं होता और उनके आखिरी हर्फ पर तनवीन भी नहीं आती। मसलन सलमा, फातिमा। नाम जो है मर्दों का नाम वो मारिफा होता है, औरतों का नाम मारिफा होता है, शहरों का नाम मारिफा होता है।
بھلے ہی اس کے شروع میں الف لام نہ آئے. جیسے نسیم، یہ لفظ کیا معرفہ ہے، حالانکہ اس کے شروع میں ان نسیم الف لام نہیں آ رہا ہے، پھر بھی معرفہ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ متعین ہے نا. نسیم سے مراد یہی لڑکا، کوئی اور لڑکا مراد نہیں ہے. اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ نکیرہ کو معرفہ بنانا ہو تو اس کے شروع میں الف لام لگا دیا جائے. ایک اور بات کیا بتایا کہ معرفہ جس کے شروع میں الف لام ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا اب اگر آپ کو نکیرہ سے معرفہ بنانا ہو، کتاب یہ لفظ کیا ہے، معرفہ کی نکیرہ، نکیرہ اس لیے کہ تنوین ہے نا لاسٹ شروع میں آخر میں. اب اس کو اگر معرفہ بنانا ہو تو یہ کر دیجیے الکتاب معرفہ ہو گیا. تو نکیرہ سے معرفہ بنانا بھی آ گیا. شروع میں الف لام بڑھا دو، تنوین اس کا ہٹا دو، کیا بن جائے گا، نکیرہ سے معرفہ، نکیرہ سے معرفہ. چلیے آپ لوگ معرفہ نکیرہ دونوں سمجھ گئے. پڑھے سب کو پڑھے. الامثلۃ، پڑھیے الامثلۃ، مثال ہے. المعلم، استاد. بتاؤ المعلم معرفہ ہے کہ نکیرہ ہے؟ معرفہ ہے. الف لام ہے بھائی. المعلم. تلمیذن، پڑھیے تلمیذن، ایک شاگرد. معرفہ کی نکیرہ ہے، نکیرہ. ماشاءاللہ معرفہ کی نکیرہ ہے تلمیذن، اس لیے کہ ترجمہ میں ایک آ رہا ہے اور عربی میں لفظ میں تنوین ہے. الفصل، پڑھیے الفصل، درس کا، درس کوئی سبق. الحجرۃ، کمرہ. بیت، ایک گھر. الخبز، روٹی. قمح، کچھ گیہوں. الثمر، پھل. بتاؤ قمح معرفہ ہے کہ نکیرہ ہے؟ نکیرہ ہے. تنوین جو آ رہا ہے لاسٹ میں قمح معرفہ کی نکیرہ ہے، نکیرہ ہے. الثمر، الثمر معرفہ کی نکیرہ ہے، معرفہ. کیوں؟ الف لام شروع میں آ رہا ہے. سمجھ آیا؟ سبق اچھی طرح سمجھ گئے نا؟ اب دیکھو اس میں نکیرہ کسے، یہ کاپی میں لکھنا ہے. اس میں نکیرہ کسے کہتے ہیں؟ سوال جواب لکھ کے لانا ہے. سمجھے؟ نسیم، راغب، اشفاق جواب لکھ کے لانا ہے. عربی میں اس میں معرفہ کی کیا پہچان ہے؟ عربی میں اس میں معرفہ کی کیا پہچان ہے؟ کیا ابھی تو میں بتایا کیا پہچان ہے؟ الف لام شروع میں آتا ہے، اسی کو لکھنا جواب. اردو میں وہ کیا علامت ہے جس سے اس میں نکیرہ سمجھ میں آ جائے؟ اردو میں نکیرہ کی کیا پہچان ہے؟ کوئی ایک کچھ کے الفاظ ہوں گے، یہی جواب میں لکھنا ہے. اس میں نکیرہ اور اس میں معرفہ میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ اس میں معرفہ میں تنوین نہیں ہوتی ہے، شروع میں الف لام ہوتا ہے. اور اس میں نکیرہ میں تنوین ہوتی ہے، شروع میں الف لام نہیں آتا ہے. اور اس کے ترجمے میں کوئی ایک کچھ کے الفاظ آتے ہیں، یہی فرق ہے. سمجھے؟ اس سبق سے پہلے جو الفاظ آپ نے یاد کیے انہیں کاپی میں نکیرہ بنا کر لکھیے. اس سے پہلے جتنا بھی لفظ آیا ادھر دیکھیے. الکلمات الجدیدۃ والصبورۃ والمرسل والحب، یہ سب جتنا بھی آیا ہے ارے یہ ہوا ہے. اچھا یہ بھی پڑھا گیا تھا کیا؟ یہ جس سب الفاظ یہ سب معرفہ ہے نا، سب الف لام ہے کہ نہیں؟ سب کو نکیرہ بنا کر کے کاپی میں لکھنا ہے. نمبر 2 اوپر دی ہوئی مثالوں میں نکیرہ اور معرفہ الگ الگ کر کے لکھیے. یہاں پر جتنا مثال ہے الامثلۃ، معرفہ نکیرہ ایک ہی لائن میں ہے نا، معرفہ کو الگ کریے گا، نکیرہ کو الگ کرنا ہوگا. نمبر 3 اوپر دی ہوئی مثالوں میں معرفہ کو نکیرہ بنائیے، نکیرہ کو معرفہ بنائیے اور ہر لفظ کا ترجمہ اس کے سامنے لکھیے. ترجمہ بھی کرنا ہوگا اور معرفہ نہیں، بس اتنا ہی رہنے دیجیے. یہ بھی الکلمات الجدیدۃ، پڑھیے نئے الفاظ. السبورۃ، بلیک بورڈ. المرسل، پینسل. الحبر، روشنائی. المکتب، میز. المنضدۃ، ڈیسک تپائی. الورق، کاغذ پتہ. الجنیدۃ، باغیچہ پارک. النور، پھول کی کلی. الغصن، شاخ ٹہنی. الماء، پانی. المطر، بارش. المریض، بیمار. الصدیق، دوست.